Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will start to read the next story, which is called Bholi. Bholi is a Hindi or Urdu word which means a sample or sampleton or someone who is supposed to be very simple in the sense that others would trick him very easily. Okay. This is a story written by Khwaja Ahmad Abbas, a very famous writer born in Punjab and a very famous Urdu poet. And very important, Khwaja Abbas even wrote stories for films also. Okay. And he was a filmmaker like Saath Hindustani, Shahr Aur Sapna, etc. Okay. And the story is about a girl who has poke marks on her face, due to which her parents are much worried about her marriage because she has poke marks, and they thought that nobody will marry her. And that's why they send her to school, because they felt that there is a little chance of her getting married. So when she went to school, she got transformed into a bold and a courageous one due to the efforts of her teacher. Okay, without further ado, we will read the story. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Boli the Simpleton. उसका असल नाम सुलेखा था, लेकिन हर कोई उसको बचपन से बोली कहता था, जिसका मतलब है सैम्पलेटन। सैम्पलेटन का मतलब होता है एक ऐसा शख्स या एक कोई भी इंसान जिसको दूसरे लोग आसानी से बेवकूफ़ बना सके। She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. तो सुलेखा जो है रामलाल की चौथी बेटी है, यानी पहले 3 बेटियां पैदा हो गई थी। जब सुलेखा 10 माह की थी तो वो अपने जो उसका जो झूला है उससे नीचे गिरी थी और गिर के उसके दिमाग को कुछ डैमेज पहुंचा था। That was why she remained a backward child and came to known as Boli the Simpleton. इसीलिए वो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ थी सोच विचार करने में, बातें करने में, इसीलिए सब लोग उसको भोली कहते थे। At birth the child was very fair and pretty. जब पहली बार पैदा हो गई तो बच्ची बहुत खूबसूरत थी। But when she was 2 years old she had an attack of smallpox. लेकिन बदकिस्मती से जब वो 2 साल की थी तो स्मॉलपॉक्स, आप जानते हैं बेटा, आपके चेहरे में और आपके जिस्म में दाग निकलते हैं। स्मॉल पॉक्स वॉज बेचारे को बुखार हुआ है। ओनली द आइज वेर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पोक मार्क्स। उसके पूरे जिस्म में, यानी पूरा जिस्म जो है काले धब्बों से भर गया, आंखों को छोड़कर, यानी सिर्फ आंखें बच गई थी उस बीमारी की वजह से। स्मॉल पॉक्स की वजह से पूरे जिस्म में धब्बे हो गए थे, सिर्फ आंखों को छोड़कर। Little Sulekha could not speak till she was 5, and at last she learned to speak. She stammered. Other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. उस छोटी बच्ची सुलेखा ने दिमागी परेशानी की वजह से, यानी उसको डैमेज हुआ था ना दिमाग गिर के, 5 साल तक तो वो बात ही नहीं कर सकी। जब 5वें साल में बात करना सीख भी लिया तो वो स्टैमर करती थी, क्या, इस तरह से। इसलिए बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, इसी वजह से वो कम बातें करती थी। रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Boli. रामलाल के कुल 7 बच्चे थे, 4 बेटियां, 3 बेटे और सबसे छोटी बोली थी। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. दरअसल रामलाल का घर अच्छा खासा घर था, एक अच्छे खासे किसान का घर था, खाना पीने के लिए फराहम मौजूद था। All the children except Boli were healthy and strong. उसके सारे बच्चे मजबूत और सेहतमंद थे, बोली को छोड़कर। The sons had been sent to the street to study in schools and later in colleges. Of the daughters, the eldest had already been married. The second daughter, Mangla, had already been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. उसके बेटे तो शहर में पढ़ रहे हैं, स्कूलों और कॉलेजेस में। बड़ी बेटी राधा की शादी हो चुकी थी, दूसरी बेटी मंगला की भी मंगनी हो गई थी, और अभी अब रामलाल उसकी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोच रहे थे।
दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम। वो तीनों लड़कियां बहुत ही खूबसूरत और सेहतमंद थी, लिहाजा उनके लिए शोहर तलाश करना, दूल्हा तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट बोली, शी हैड नीदर गुड लुक नॉर इंटेलिजेंस। लेकिन रामलाल बोली को लेकर परेशान था, इसलिए कि बोली न तो अच्छी दिखती थी न ही बोली अक्लमंद थी। बोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। मंगला की जब शादी हुई तो बोली, बड़ी बहन की जब शादी हुई तो बोली 7 साल की थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वर ओपन इन द कॉलेज इन द विलेज। उसी साल जिस साल मंगला की शादी हो गई, उनके गाँव में एक स्कूल खुला, प्राइमरी स्कूल खुल गया। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। ही सेड टू रामलाल। तहसीलदार खुद आके उस स्कूल को इनॉग्रेट किया था और उसने रामलाल से कहा था, चूँकि रामलाल नंबरदार था ना उस गाँव का, एज रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। चूँकि वो जो प्राइमरी स्कूल बच्ची लड़कियों के लिए खुला था, इसलिए तहसीलदार ने रामलाल से कहा, चूँकि तुम इस पूरे गाँव के नुमाइंदे हो, लिहाजा दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल बनकर अपनी बेटियों को स्कूल भेज देना। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" शाम को जब वही बात रामलाल ने अपनी बीवी से बता दिया कि कल से हम बच्चियों को स्कूल भेजेंगे, तो उसकी बीवी ने कहा, तुम पागल हो गए हो, अगर हम बच्चियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल टू डू सेंड बोली टू स्कूल एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विथ हर अगली फेस, लैक ऑफ सेंस, लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। और रामलाल तो ज़ाहिर सी बात है तहसीलदार की नाफरमानी नहीं कर सकता था। बिल आखिर उसकी बीवी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम एक काम करो, तुम बोली को स्कूल भेजो। बोली को स्कूल भेजेंगे तो वहाँ शायद उसकी शादी हो सकेगी, यानी जब स्कूल जाएगी थोड़ी पढ़ी लिखी हो जाएगी तो शायद कोई उसको पसंद करे, कुछ बात करने लग जाए, या स्कूल में वो अच्छी तरह बैठना सीख जाए और अच्छी तरह बात करना भी सीख जाए, जिसकी वजह से वो शादी करने के लिए चांस बन जाए, वगैरह वगैरह। फिर उसने कहा कि उसके उस बदसूरत चेहरे और उसकी जो कम अकली है, उसके बायस कोई भी शादी करने वाला नहीं है, लिहाजा बाढ़ में जाए, उसका सारा काम टीचरों के ऊपर थोप देते हैं, उसकी बीवी ने कहा। द नेक्स्ट डे रामलाल caught बोली by the hand and said, come with me, I will take you to school. बोली was frightened. दूसरी सुबह बोली का हाथ पकड़कर रामलाल निकल पड़े और कहने लगे, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। बोली was frightened. बोली काफ़ी डरी हुई थी। She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसको स्कूल के बारे में कुछ भी मालूम न था बोली को। वो सिर्फ ये जानती थी कि कुछ दिन पहले उनकी गाय लक्ष्मी को किस तरह से घर से बाहर निकाल दिया गया और बेच दिया गया। लिहाजा उसको ये लगा, चूँकि मुझे भी घर से बाहर ले जा रहा है बाबा, शायद बेच के आएंगे। उसको भी स्कूल का बारे में बोलते ही उसको यही ख्याल आ गया। She shouted in temper and pulled her hand away from her father's grip. अब जाहिर सी बात है वो स्टेमर करते थे ना, तो ये कहना नो, नहीं कह सके, नहीं। वो डर के मारे चिल्लाने लगी और अपने बाप की गिरफ्त से हाथ को झटक लिया। What's the matter with you, you fool? shouted Ramlal. I am only taking you to school, or else what will the teachers in the other school think of us when they see her? रामलाल ने भी गुस्से से कहा, तुम्हें क्या हो गया बेवकूफ़, मैं तुम्हें स्कूल ले रहा हूँ, बाकी टीचर और बाकी बच्चे आपके बारे में क्या सोचेंगे जब हमें इस तरह से देखेंगे। वो चलो स्कूल चलना है। न्यू क्लोथ हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली को कभी भी नए कपड़े नहीं खरीदे गए थे या नहीं बनाए गए थे। क्यों? चूँकि द ओल्ड ड्रेस ऑफ हर सिस्टर्स वेर पास्ड ऑन टू हर। चूँकि उसकी बड़ी बहनों के जो कपड़े थे वहीं उसको पहनाए जाते थे, कभी कोई नया कपड़ा खरीदा या सिया नहीं जाता था उसके लिए। No one cared to mend or wash her clothes. कोई भी उसके कपड़े अगर फटे तो न सी देता था, अगर गंदे हो गए तो धो देता था, यानी कोई भी उसके कपड़ों का ख्याल नहीं रखता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। लेकिन आज खुशी की बात है कि उसको एक नया ड्रेस पहनाया गया है। वो भी कौन सा नया ड्रेस? ऐसा ड्रेस जिसको बार बार धोने की वजह से जो सुकड़ गया हो और अब चंपा के लिए बराबर ना आता हो, यानी अब वो दो के वो ड्रेस छोटा हो गया था बड़ी बहनों का, इतना छोटा हो गया था कि चंपा के लिए फिट नहीं आ गया, इसलिए उसको पहनाया गया था। शी वॉज इवन बाथड एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर। उसके गंदे बालों और जिस्म को धुलाया भी गया था और तेल भी लगाया गया था। ओनली देन शी डिड बिगेन टू टेक बेटर देन हर होम। तब जाके जब उसको धुलाया गया और नए कपड़े पहनाए गए, तब जाके स्कूल से बाहर लेने के लायक थी। प्यारे बच्चों, आज के लिए यही काफ़ी है। खुदा हाफिज़।